Hello 11th class political science students. Hope you all are doing great. Today we are here with the part second of the chapter Rights in Indian Constitution. In last part, we have discussed the basic things about rights and fundamental rights. I have told you the meaning of term rights as well as fundamental rights. We have also seen the development of fundamental rights, and in that context we have studied two different stories. One that was related to the constructional workers, and second that was related to that person who was not able to get justice for 54 years. So let's move forward today, and we are going to discuss fundamental rights in the Indian Constitution. It means what we are going to study? We will discuss the fundamental rights which are mentioned in Indian Constitution. So let's start now. During our freedom struggle, the leaders of the freedom movement had realized the importance of rights and demanded that the British rulers should respect rights of the people. हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्या हो रहा था, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और उन्होंने डिमांड भी की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उनको हमारे जो इंडियन पीपल है उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स as far back as in 1928. You can underline the fact that in 1928 Motilal Nehru Committee has demanded for the Bill of Rights. And what is Bill of Rights? We have discussed in last class. Here it is mentioned in the left corner that Bill of Rights is like a warranty card that we get when we purchase a TV or fan, isn't it? ऐसा ही है ना कुछ कि आपके जो बिल ऑफ राइट्स क्या है कि उन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है जो आपको फंडामेंटल राइट्स में, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होते हैं. So in 1928, Motilal Nehru Committee has demanded for the Bill of Rights. It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the Indian constitution. अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, because we have already demanded from the Britishers our rights, and that's why when we were trying to frame our constitution, तो वहां पे कोई टू ओपिनियंस बने ही नहीं, because every person was in the favor on the inclusion and protection of the rights in the Indian constitution. मतलब हर कोई चाह रहा था. inclusion मतलब क्या होता है? include मतलब जिसको आप इंक्लूड कर लो. इंक्लूजन वही होगा ना, समावेशन, यानी जिसको आप अंदर समाहित कर देते हो, मिला देते हो. एंड प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करोगे, है ना, सेफ गार्ड करोगे. ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट. अब क्या होगा, एक लिस्ट आपको दी जाएगी और वो लिस्ट होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटेड. इट मीन्स ऐसे राइट्स होंगे जिनको आपकी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा. उस ऐसी लिस्ट को, उन ऐसे राइट्स को जो उस लिस्ट में मेंशन है, उसी को नाम दिया गया है फंडामेंटल राइट्स. In the last class also I told you that fundamental rights are those rights which are guaranteed by the constitution of any country. So here is the same thing कि constitution क्या है, वो लिस्ट है उन राइट्स की जो क्या होगा, जिसको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उन सारे राइट्स को आपने नाम दे दिया फंडामेंटल राइट्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब देखो यहां पर मीनिंग गिवन है. द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट that these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provision for their protection. अब देखो फंडामेंटल क्यों ऐड हुआ है इन टर्म्स के, इन राइट्स के आगे. ये क्या सजेस्ट करता है, व्हाट डज इट शो? ये यही शो करता है कि ये जो राइट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली लिस्टेड किया है, उनको स्पेशली मेंशन किया है और उनके लिए स्पेशली प्रोविजन बनाए हैं ताकि आप इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सको, आपके इन राइट्स को कोई आपसे स्नैच ना कर सके.
The fundamental rights are so important that the constitution itself ensure that they are not violated by the government. और देखो इतने इंपॉर्टेंट है कि इवन गवर्नमेंट को भी राइट नहीं है कि आपके राइट्स को आपसे स्नैच कर ले, आपसे छीन ले। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो फंडामेंटल वर्ड ऐड है राइट्स के आगे वो आपको क्या शो करता है, ये यही शो करता है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। और इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वी आर एबल टू सी कि वो सेपरेटली लिस्टेड है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में। और सिटीजन तो दूर की बात है, कोई कॉमन पर्सन तो दूर की बात है, इवन गवर्नमेंट भी आपके उन राइट्स को वोलेट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई दीज आर फंडामेंटल राइट। गॉट इट। अब देखो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस while ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary law. अब देखो फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो आपके दूसरे राइट से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट क्यों होते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड है ना। while ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law. अब देखो क्या है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स कौन से लीगल राइट्स हैं, जो ऑर्डिनरी वाले हैं, जो फंडामेंटल नहीं है। ऐसे भी तो बहुत सारे राइट्स है ना, तो वो जो आपके ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एनफोर्स करते हैं हमारी कंट्री के ऑर्डिनरी लॉ। बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल है हमें, और उनको प्रोटेक्ट करता है खुद हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। Fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country. यानी कि ये वाले वो राइट्स हैं जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि ये वाले राइट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। क्योंकि ये वो राइट्स हैं कि अगर किसी पर्सन को सपोज ये राइट्स नहीं मिले ना तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दीज राइट्स आर टू मच इंपॉर्टेंट। और इसीलिए इनको प्रोटेक्ट भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि उनको उनकी गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि इन राइट्स को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब उसके बाद ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। अब ऑर्डिनरी राइट्स कौन से हैं, ऑर्डिनरी राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं जिनको हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ प्रोसेस से चेंज कर सकती है। बट अब अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज होना है तो ये कैसे होगा, मे ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना पड़ेगा अगर आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स में कभी चेंज हुआ ही नहीं है। पहले हमारी कंट्री में 7 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते थे, बट व्हेन वी रियलाइज्ड कि एक राइट ऐसा है जिसको आपको ऑर्डिनरी राइट्स की एक लीगल राइट की कैटेगरी में रख देना चाहिए, तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था। गॉट इट। अब उसके बाद बिसाइड्स दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वोलेट्स देम। और इसके अलावा क्या है, कोई भी गवर्नमेंट भी ऐसा वर्क नहीं कर सकती जो आपके राइट्स को वोलेट करता हो। इट मीन्स देखो कहीं ना कहीं जो राइट्स है वो गवर्नमेंट को भी बाउंड कर देते हैं। उसके अलावा एज वी शैल स्टडी बिलो इन दिस चैप्टर, जुडिशरी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो इसके लिए भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये राइट्स प्रोटेक्ट होंगे कैसे, उसका मेथड भी मेंशन है। और वो क्या मेथड है कि अगर सपोज आपके राइट्स को कोई स्नैच करता है, कोई आपके राइट्स को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, तो आपके पास क्या क्या मेथड है, आपके पास हाउ कैन यू प्रोटेक्ट। सो वो मेथड भी मेंशन है कि कौन हेल्प करेगा, हमारी कंट्री की जुडिशरी। जुडिशरी हैज द एबिलिटी एंड पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। मतलब यहां पर जुडिशरी आपको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। Executive as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary if these violate the fundamental rights or restrict them in an unreasonable manner. और यही नहीं, सपोज हमारी गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया। अब आप सबको पता है वी आर हैविंग 3 organs of the government,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेजिस्लेचर का काम ही है लॉ बनाने का। तो सोचो अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, but after that also judiciary is having the right to check it whether it is violating the fundamental rights of the common people, whether it is violating any fundamental rights of the citizen। और अगर ऐसा है तो हमारे बने बनाए लॉ भी इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं जुडिशरी। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे प्रोविजन किए गए हैं। गॉट इट? इट मीन्स अगर अनरिजनेबल मैनर से राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करने की कोशिश होती है, राइट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश होती है, सो वी आर हैविंग वन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज जुडिशरी। गॉट इट? अब उसके बाद हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अब इस चीज को याद रख लेना, फंडामेंटल राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। नाउ यू शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देखो अनलिमिटेड, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने इतना स्टडी कर लिया कि गवर्नमेंट को भी ये अथॉरिटी नहीं देते कि आप फंडामेंटल राइट्स कौन से छीन लो, सिटीजन से छीन लो। लेकिन जो अब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं? बेसिकली वो आपके एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी पोजीशन में आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई बाउंडेशन हो ही नहीं सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस लग ही नहीं सकती है। Got it? It means fundamental rights, any, even you can say any right of Indian Constitution is not unlimited. There are everywhere positive restrictions. अब क्या इसमें गवर्नमेंट कैन पुट रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सपोज इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि अगर मान लिया आपके पास राइट है कि आप म्यूजिक सुनो, तो आपके पास ऐसा राइट नहीं है कि आप उसको इतनी तेज वॉल्यूम में सुनोगे कि उससे दूसरे इंसान के हेल्थ पर ही नेगेटिव इंपैक्ट चला जाए, है ना? तो ये क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स तो है, यू कैन एंजॉय, यू कैन लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर विशेस ड्रीम्स, but you will have to keep in your mind that your rights are limited, your rights are under some positive restrictions, and if government feel that because of the fundamental rights, because of the some people fundamental right, there is some critical situation, so government can restrict the exercise of our fundamental rights. Hope it is clear to all of you. अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें बेसिकली क्या गिवन है? बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्टडी कर लिया, राइट? अब स्टडी करना है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है। सभी को पता है बिकॉज स्मॉलर क्लासेस से आप स्टडी करते आते हो कि इन साउथ अफ्रीका देयर वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड सिस्टम, नेल्सन मंडेला हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर उन्होंने प्रिजन में ही कहीं ना कहीं मतलब बिता दिए। और उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बट उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेम थिंग, अबाउट द बिल ऑफ राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। So let us discuss it. The South African Constitution was inaugurated in December 1996. So this was inaugurated by 1996. Its creation and promulgation took place at a time when South Africa still faced the threat of a civil war after the dissolution of the apartheid government. अब देखो इसकी जो बनने की प्रोसेस थी और इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस थी वो बेसिकली कब थी? जब साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं सिविल वॉर था। देखो सिविल वॉर किसको बोलते हो आप? सिविल वॉर मीन वॉर हो रहा है बट वॉर दैट इज इन द कंट्री ओनली, दैट इज इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ओनली। कोई और कंट्री आपके ऊपर अटैक नहीं कर रही है। सपोज इंडिया का सिविल वॉर है तो इंडियन पीपल आपस में फाइट कर रहे हैं। गॉट इट? अब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बिल ऑफ राइट्स इज अ cornerstone of a democracy in South Africa। और
अकॉर्डिंग टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो वहां का बिल ऑफ राइट्स है, दैट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है उनका बिल ऑफ राइट्स। क्यों है? इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मटेरियल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। मतलब किसी भी बेस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोहिबिट्स इट। वो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है ना। आप अगर अपनी कंट्री में देखोगे तो इतने सारे वर्ड्स मेंशन नहीं है। हमारी कंट्री में कास्ट, कलर, जेंडर, रेस, ये सारी चीजें मेंशन है, बट यहाँ पर देखो कितनी सारी चीजें। रेस मतलब स्किन कलर, जो नस्ल बोलते हैं जिसको, जेंडर लिंग के मतलब बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी के बेस पे, मटेरियल स्टेटस कि आप रिच हो पुअर हो, ठीक है, एथनिक और सोशल ओरिजिन कि आप किस सोशल स्टेटस से आते हो, किस सोशल ग्रुप से आते हो, कंसाइंस आपके अंदर कंसाइंस कितनी, यानी तर्क, जो रीजनल वाली पावर होती है वो, बिलीफ आपके मतलब जो रिलीजियस बिलीफ भी हो सकते हैं वो कैसे हैं, कल्चर आपका कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, और बर्थ आपका बर्थ कहाँ हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, किस फैमिली में हुआ है। ऑन एनी बेसिस पीपल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। It grants perhaps the most extensive range of rights to the citizens. ये शायद क्या है, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव रेंज में है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडेड है इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट्स। A special constitutional court enforces this right and enshrined in the constitution. और क्या है, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वो क्या करता है, एनफोर्सेस द राइट्स, इन्फोर्स करवाता है इन सारे के सारे राइट्स को जो कहीं ना कहीं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एनरिच होते हैं, विजिबल होते हैं। गॉट इट? उन्होंने देखो कितने ज्यादा कॉन्शियस हैं रिगार्डिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज दे हैव मेड द प्रोविजन ऑफ अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑल्सो फॉर दैट। अब इनमें से क्या है, सम ऑफ द राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इंक्लूड। अब देखो हमारी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स आप स्टडी करते हो, दे आर दे आर 6 ओनली, बट यहाँ पे क्या है, ह्यूज डाइवर्सिटी इज देयर। अब देखो कैसे, जैसे राइट टू डिग्निटी, मतलब यू कैन लिव योर लाइफ विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। राइट टू प्राइवेसी, अब देखो प्राइवेसी हमारी कंट्री में भी जो केरला हाई कोर्ट है उसने प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला है, मतलब उसके अंडर सब पार्ट में उसको एक्सेप्ट किया है। बट अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये मेंशन राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, बिल ऑफ राइट्स में इंक्लूड होता है। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, यानी जो हमने कंटेक्स्ट पढ़ा था इंडिया वाला कि जो कंस्ट्रक्शनल लेबर थे दे वर पेड वेरी लेस, तो ऐसा वहां पे नहीं है, बिकॉज देयर इज द प्रोविजन ऑफ फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रह सकते हो और आपका राइट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी। इफ यू सी दिस राइट, healthy environment, it is also included in Indian fundamental rights also, but it is not directly the part of fundamental rights because it is a sub part in article 21. Got it? इंडिया में भी इंक्लूड होता है बट डायरेक्टली आप नहीं स्टडी करते, ये सब पार्ट्स में इंक्लूड हो जाता है राइट टू लाइफ के। आफ्टर दैट राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब हम देखो क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ही बोलते हैं ना, बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो वो सारी की सारी चीजें वहां पे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होती हैं। चिल्ड्रंस राइट, यानी बच्चों के साथ आप कैसा बिहेव कर सकते हो, कैसा नहीं कर सकते हो, कौन सी सिचुएशन है जो आप उनको मतलब उनके साथ वो बिहेव नहीं कर सकते, वो सारी चीजें मतलब चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, अब देखो हमारी कंट्री में क्या डिफरेंस है, हमारी कंट्री में जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है दैट इज अप टू 8th क्लास ओनली, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, बट यहाँ पे राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन इज गिवन टू इट्स सिटीजन। उसके बाद राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, इन सभी को राइट्स मिले हुए हैं।
मतलब जितने भी कल्चर के बेसिस पे कम्युनिटीज हैं, रिलीजन के बेसिस पे कम्युनिटी है और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज है, सबको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। मतलब ये आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इनके थ्रू अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। और राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑल द राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट दैट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। इन 2005 इट वाज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रिगार्डिंग कोई भी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो एंड द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड। सो अगर आप देखते हो तो कितना ज्यादा ब्रॉड वे में अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स या फिर बिल ऑफ राइट्स प्रोवाइड करवाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो यहाँ पे आपसे ना कुछ पूछा गया, चेक योर प्रोग्रेस हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखो, कंपेयर द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन with the Bill of Rights in the South African Constitution, make a list of rights that are, अब देखो, common to both the constitution। अब जैसे हमारी कंट्री में भी क्या है, राइट टू लिबर्टी है, गॉट इट। अब देखो यहां वाले एज इट इज आपको क्या मैच होते हैं, जैसे कल्चर वाला है ना, हमारी कंट्री में कल्चर का है, रिलीजन का भी, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, है ना। जो आर्टिकल 25 टू 28 है हमारी कंट्री में, वो डायरेक्टली स्टेट करता है कि हमारी इंडिया दैट इज अ सेक्युलर स्टेट। आर्टिकल 29 और 30 बेसिकली रिलीजियस और जो आपके कल्चरल कम्युनिटीज है उनके राइट्स के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो फेयर लेबर प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं हमने इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में डाला हुआ है, गॉट इट। So these are some kind of rights which we are able to see. Children right, yes, of course we are having in Article 24 of our Constitution. Got it? But अब देखो इसके बाद कुछ ऐसे हैं अवेलेबल इन साउथ अफ्रीका बट नॉट इन इंडिया। अब ऐसे राइट्स कौन कौन से हैं जो वहां है बट हमारे यहाँ नहीं है? जैसे फंडामेंटल राइट एडिक्वेट हाउसिंग का इंडिया में नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो हायर एजुकेशन का राइट है वो आपका फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता। अलोंग विद दैट जो उन्होंने इतने ब्रॉड वे में ये चीजें मेंशन किया ना, देखो ये सारी चीजें ऑल दीज थिंग्स ये भी हमारी कंट्री में इतने ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। अलोंग विद दैट देखो यहाँ पे वर्ड मेंशन हुआ है दैट इज रिलेटेड टू जेंडर। देखो यू आर एबल टू सी जेंडर, है ना। सो जेंडर से हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मेल और फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना नहीं होता, है ना। इसके अलावा भी हमारा और ग्रुप्स भी है सोसाइटी में, ट्रांसजेंडर इज ऑल्सो देयर, है ना। अलॉन्ग विद दैट वन कम्युनिटी LGBT, आप लोगों ने सुना होगा आई थिंक, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सारी कम्युनिटीज हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ऑल्दो वी आर हैविंग प्रोविजंस रिगार्डिंग दैट कम्युनिटी, दैट आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी क्या है, जो इतने ब्रॉड वे में इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेंशन कर दी ना, हम लोगों ने उतने ब्रॉड वे में सबको राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। कहीं ना कहीं अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के एस्पेक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा ब्रॉड है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और उसके अलावा क्लियरली ग्रांटेड इन साउथ अफ्रीका बट इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लियरली सिर्फ साउथ अफ्रीका में है बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं दिखते, ठीक है। अब देखो वो कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से राइट्स हो सकते हैं। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन ये आपको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में साउथ अफ्रीका में दिख रहा है बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ any sub-part of fundamental rights of Indian Constitution. Got it? So I hope till now it is clear to all of you and you are able to understand some basic things regarding Indian Constitution, some basic things regarding fundamental rights and the world context also. You have understood the African context as well. After that, from the next class, we will study
all those fundamental rights, देखो ये सारे fundamental rights, these are 6 fundamental rights which are guaranteed by the Indian Constitution, that we will discuss in next class. Till then, keep learning, stay connected, and if you are having any kind of doubt, you can ask your question in comment section. Till then, take care. Thank you. Thanks a lot.